ऐसा माना जाता है कि अगर आप पैसा खोते हो तो शायद कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं खोया है, लेकिन आप हेल्थ खोते हो तो शायद आपने बहुत कुछ खो दिया है। एक स्टेटमेंट पढ़ा था कभी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, द हेल्थ ऑफ इंडिया इज इन आईसीयू। किसी भी देश को, स्पेशली डेमोक्रेसी के अंदर, अगर देश को रियली डेमोक्रेटिक एथोस को फॉलो करना है तो कहीं ना कहीं द हेल्थ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एस्पेक्ट, because only a healthy individual, that is healthy body and mind, can make the choices which are healthy in nature. Recent time के अंदर we have seen a trend that the health infrastructures or the health facilities in Indian society is getting fast privatized. Should the privatization of health take place? For example, Ayushman Bharat, if you take into account, it has one component of insurance and has one component of health and wellness centers. The public health infrastructures जो है, that is especially the PHC level, primary health centers, as per Ayushman Bharat, we are planning to convert them into health and wellness centers. Not only at the level of primary health, but even at the level of tier 2, tier 3 cities, and even at the level of the tertiary cares, we are seeing fast privatization of health. What are the implications of privatization of health? Do we have the resources to sustain or provide the facilities without the cooperation of private segments? Or are we transferring the entire health burden of the society or the responsibility to the private hands? डिबेट बहुत बड़ी है, दोनों तरफ की आइडियोलॉजीज और मत रहते हैं. Some supports the privatization of health on the ground that at least now the possibility of quality health is present. On the other hand, the counter argument runs is this, that the private health are largely over exploitative. They exploit rather than focusing on the curative care. They focus upon the preventive care. They focus upon the curative care. आज इस छोटे से नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स के डिस्कशन में आपका पेपर 3 जीएस का कोई भी टॉपिक अगर हेल्थ से रिलेटेड होगा और हाई पॉसिबिलिटी है इस टाइप के क्वेश्चंस आने के, मेक श्योर ये आर्टिकल, ये पीपीटी आपके पास हो. टेलीग्राम चैनल के अंदर मुझे ज्वाइन करें एंड यू विल गेट दिस पीपीटी देयर, t.me/divakarbothr. यहाँ पे ये पीपीटीज मैं सेंड कर देता हूँ वंस द वीडियो इज पब्लिश्ड. और साथ ही साथ में इस लेक्चर के नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में डू लिसन टू इट विद uttermost concentration, as it will help or solve many of your questions which have been unanswered in a clear crystal manner. So the article which I read here was the public health for all, universalizing healthcare in India from care to coverage. In fact, this small topic can largely be very important. Care to coverage, if you look, it has been a fabulous title which has been given. We need to not only provide the care, but we also need to ensure the coverage. The article in the CPW was by Imrana Qadir. Different scholars, different opinions has been given here. The name of the scholars are not important if you're looking it from the general studies perspectives. अगर आप GS के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, but suppose if some questions related to your health comes with respect to your population dynamics in sociology, then definitely make a note of these scholars as well. Alma Ata Declaration 1978. डिक्लेरेशन कहती क्या और है क्या? डिक्लेरेशन एम्ड एट एंश्योरिंग इक्विटेबल, फर्स्ट, यूनिवर्सल, सेकंड एंड इंटीग्रेटेड प्राइमरी हेल्थ. कि प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज, मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वो इंटीग्रेटेड तरीके से यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, इक्विटेबल तरीके से. इस डिक्लेरेशन को साइन किया हुआ है. और अगर अब हम अपनी प्रेजेंट इंडिया का स्टेटस देखें, health, as far as the health infrastructure or health outcomes are concerned, we see the objective is higher economic growth and advocating technological solution for health problems. Our focus today in order to resolve the health issues are not to change the habits, but rather than providing high-tech solutions so to cure the diseases. India का unfortunately health policies में focus यहाँ पे है. The government is now seen as a guarantor and enabler and not necessarily the only provider. एक टाइम था जब शायद गवर्नमेंट ही ये हेल्थ केयर प्रोवाइड करती थी, बिकॉज उस टाइम उद्देश्य ये था कि हेल्थ केयर के पीछे एक सोशल कॉज थी. लेकिन जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन या कमर्शलाइजेशन आया तो एजुकेशन जैसे कमर्शलाइज हुई है वैसे ही हेल्थ भी कमर्शलाइज हो गई. एंड वी ऑफन सी दैट कि अब सिर्फ गवर्नमेंट एकमात्र अनेबलर था, ओनली प्रोवाइडर नहीं बचा.
इन शॉर्ट गवर्नमेंट इज बिकमिंग ए स्ट्रैटेजिक परचेजर। ये जरूर वर्ड यूज करना, लिख के रख लो, आपके टॉपिक लगाओ हेल्थ और उसके नीचे ये कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स लिख के रखना जो आगे भी आने वाले हैं। एक स्ट्रैटेजिक परचेजर बन चुका है ऑफ केयर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर केयर देता है इन द फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, इन द फॉर्म्स ऑफ सर्विसेज, और गवर्नमेंट जो है ठप्पा लगा के उन्हें कंपनसेट करती है कि अच्छा इस ऑपरेशन के इतने पैसे या इस दवाई के हम आपको इतने पैसे देंगे, आप ये सर्विस प्रोवाइड करो। तो इट्स लाइक एक गवर्नमेंट थर्ड पार्टी सर्विसेज ले रही है बाय पेइंग देम। तो डायरेक्टली प्रोवाइडर नहीं है गवर्नमेंट, रादर देन प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर है। गवर्नमेंट इज ओनली ट्राइंग टू रेगुलेट देम और आस्किंग देम टू प्रोवाइड सर्विसेज एट अ मिनिमम बेसिक कॉस्ट। इससे आगे जाए तो अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर्टिकल के स्टार्ट होते हैं। क्वालिटी इन हेल्थ केयर पे हमारा क्या पोजीशन है? इफ यू लुक, प्राचीन गोडकरा Godraj says in race of promoting quality there is a risk of in race of promoting quality there is a risk of quality assessment। हम क्वालिटी प्रमोट और क्वांटिटी प्रमोट करने के चक्कर में कई बार हम क्वालिटी असेसमेंट ठीक से नहीं करते इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फास्ट एंड स्पीडी सर्विसेज। systems being used for closing down the public facilities and favoring corporate hospitals। राइट टू एजुकेशन एक एक्ट आया था जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं होने के कारण, हालांकि ये हेल्थ से कनेक्टेड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण उत्तर प्रदेश का एक केस स्टडी मैंने पढ़ा था जहां पे बहुत सारी गवर्नमेंट या फिर छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स भी बंद कर दिए गए। गवर्नमेंट बंद नहीं किए गए, आई एम सो सॉरी, प्राइवेट स्कूल छोटे छोटे बंद कर दिए गए। क्यों? कि वो आरटी के अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास में। अब वहां के बच्चों को अब एजुकेशन भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे छोटे छोटे स्कूल्स है, अगर उन्हें बंद कर दोगे तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा। आज क्या हो रहा है? सेम चीज हेल्थ में हो रहा है कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम बोल दे रहे हैं कि क्वालिटी ठीक नहीं है और उन्हें बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं। दिस इज लार्जली लीडिंग टू कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेक्टर्स इन इंडिया। अ वेरी वैलिड एंड जेन्युइन पॉइंट, डू राइट इट डाउन व्हेनेवर यू आर सीइंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मेडिकल एजुकेशन के ऊपर अर्चना दिवाते बोलते हैं in this article she discusses about the implications of highly privatized medical educations. The analysis goes something like this: privatization of medical education has made medical education an instrument of profit. Now it's not largely more service oriented, it has become more profit oriented. People are paying crores of donations in order to largely take or become doctors or complete their MBBS or further. This does not strengthen the vision of universal healthcare, because this is going to create a problems as the people, especially the doctors, would become more profit centric. Obviously the doctors do deserve a sufficient amount of money for their hard work pursued in the past 14 years 13 years of their MS MCH. But at the same time, privatization of medicalizations in at a very larger, faster pace would definitely not be good for the healthcare of the Indian society when you look from the universal perspectives as such. फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, बहुत टाइम आज हम देखते हैं डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फॉर्म में प्राइवेटाइजेशन होता है। इसके अंदर भी कुछ लोगों ने डिस्कशन किया इस आर्टिकल में, ताकि आपके पास ये फैक्ट्स रहे। कल अगर आ जाए पीपीपी इन हेल्थ, जैसे रेलवे स्टेशन पूछा वो हेल्थ पूछ ले, हॉस्पिटल्स पूछ ले। PPPs in healthcare was promoted by state to improve the functioning of public health services and ensure quality care hospitals. तो जो पब्लिक हॉस्पिटल्स ठीक से नहीं चल रही थी उन्हें प्राइवेटाइज पब्लिक PPP पे रन किया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, ताकि वो ज्यादा बेटर फंक्शंस कर सके, परफॉर्म कर सके और पॉपुलेशन को ज्यादा कवर कर सके। देखा क्या गया? सिल्विया मैम बोलती है कि कुछ इश्यूज है पीपीपी में। क्या? फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही है, फ्रॉड्स, अपॉइंटमेंट ऑफ अनट्रेड डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स, और अनएथिकल मीन्स टू मैक्सिमम प्रॉफिट्स। Gabbar is back. We have already seen the movie how even a dead body is often treated by private organizations, although that could be an exaggeration, but yes, unfortunately this is a reality of many of the small, at least some of the private organizations as far as the hospitals are concerned. Bijoya Roy bolte hain, PPPs are unreliable means to ensure universal health care. You cannot depend them for a longer period of time, because if they are not profitable they'll come out of it. पीएम आरती बोलते हैं पीपीपीज हैव डिस्टॉर्टेड व्हाटएवर लिटिल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाज देयर। जो हमारा ऑलरेडी कुछ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी डिस्टॉर्ट हो चुका है, बिकॉज अब प्राइवेट लोग दे हैव डेवलप्ड देयर ओन बेटर सेंटर्स एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ दिस एंड दे हैव actually destroyed whatever the public infrastructures we have built in that past 75 years of Nehruvian era. Out of pocket expenditure, अगर हम देखें, द हाईएस्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑब्वियसली ऑन मेडिसिन, 80% तक का फैक्ट बताता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे।
अब जैकब पुलियल बोलते हैं पावरफुल ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट, ये बोलते हैं कि पावरफुल ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे ग्लोबल वैक्सीन अलायंस या फिर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स करते हैं कि नई नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाए उनके वैक्सीन प्रोग्राम के अंदर, एंड मेनी टाइम्स दिस डिस्टॉर्ट्स द वैक्सीन प्रोग्राम्स ऑफ द कंट्रीज सच एज डेवलपिंग नेशन सच एज इंडिया। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी वैक्सीन डाल दी जाती है जो ड्रग कंपनीज को, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो शायद डिजीज उस लेवल पे इंप्लीकेशंस नहीं रख रहा उस पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्रीज में, बट येट दैट वैक्सीन इज सोल्ड सो जस्ट टू मिंट मनी आउट ऑफ इट। तो ये सिर्फ एक सोशल प्रोस्पेक्टस की आड़ में इट्स प्योर एक्सप्लॉयटेशंस व्हिच दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग, हैम्परिंग द हेल्थ प्रोस्पेक्टस स्पेसिफिकली ऑफ द डेवलपिंग नेशंस। Up, in order to conclude this article where I've given you a very crucial and important facts, any health system should be run on the principles of people over profit. ये स्टेटमेंट लिख के रखना, दिस विल हेल्प यू टू राइट सम इंट्रो बॉडी और कंक्लूजंस कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स या फिर हेल्थ के अंदर एक सिंगल मोटो होना चाहिए, चाहे देश किसी भी डेवलपमेंटल लेवल पे पहुंच जाए, द प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू पीपल ओवर प्रॉफिट। सो इफ दिस इज हाउ यू रियली वांट टू लर्न द थिंग्स अप, although these sessions are helping you out, but over a period of time if you want to learn it in much more in depth और इसको कैसे सोशो में अप्लाई करते हैं और कैसे मैं क्लास में कवर करता हूँ, do join our batch of sociology which starts from 18th of July। 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है स्टडी IQ के अंदर हमारा सोशोलॉजी का बैच। do join that up and it will definitely make difference to your thinking process। और एक बार analytical abilities develop होती है, it becomes a cakewalk to at least develop better answer skills, better content, and learn the existing content from a more better and more dimensional perspective. Thank you so much. Have a nice day.